Hello students, how are you? Today we have to start the new part of a plant, that is leaf. Okay, in last lecture we have completed the two parts of the plant, which is the first part of the plant, root. Okay, in that we have also taken the modification in root in some plants, and then the another part of the plant is stem. Okay, stem is nothing but stem is a part of a plant. Okay, and the main function of stem is to support the plant. Then today we have to start the leaf, the third structure or third part of the plant. प्लांट का तीसरा पार्ट जो है लीफ, सिंगुलर लीफ, प्लूरल फॉर्म लीव्स, एक वचन अनेक वचन. तो आज हम लीफ स्टार्ट करेंगे बच्चों. ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग द फिगर ऑफ लीफ. This is the leaf of a plant. And this is the mid vein which runs in the middle of the leaf. It is called as mid vein. This typical leaf, this leaf generally in the dicotyledonous plant. What is meant by dicotyledonous plant? The plants having two cotyledons in their seeds. जो प्लांट के सीड्स में दो cotyledons है, ऐसे प्लांट को हम डायकॉट प्लांट्स कहते हैं. बराबर है. तो ये जो है लीफ ऑफ अ प्लांट है बच्चों. नाउ आई एम लेबलिंग द डायग्राम. दिस इज द एक्सिलरी बर्ड, axillary bud. Then this is the petiole, and this is the stem of a plant का same. Now I am giving the label to the leaf. Okay, leaf को हम label देने वाले हैं. This outer part of leaf, or it is called as lamina or leaf blade. इसे leaf blade भी कहा जाता है बच्चों. Outer part of the leaf, it is the lamina or leaf blade. Then this is the leaf margin, and there is a mid vein in the center of leaf which is called as midrib. इसे क्या कहा जाता है? midrib कहा जाता है, midrib. And these are the side veins, these are the side veins, वो हम देखने वाले हैं. Now this is the figure of part of a leaf, ये जनरल लीफ का जो पार्ट होता है जनरली ऐसा होता है. हम देखेंगे वन बाय वन. Now what is leaf? Leaf is nothing but it is a green flattened structure of a plant which arises from the stem. ये जो भी stem है ये stem से arise होने वाला है, डेवलप होने वाला है.
बराबर है, arises from the stem and its branches. Leaf is a very important part of the plant because leaf is a site for photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is nothing but a process in which plants can make their own food in presence of sunlight and chlorophyll to form complex food, that is carbohydrate or glucose. This is the plant food. बराबर है. So the main function of leaf is to prepare their own food in the leaf. बराबर है, in the leaf. And this photosynthesis process which takes place in the leaf of a part, generally it takes place in the stomatal region of a leaf. लीफ का जो स्टोमेटा है, स्टोमेटल रीजन, स्टोमेटल पार्ट्स है, वहां पे फोटोसिंथेसिस जनरली होता है. तो ये मेन फंक्शन लीफ का है. बराबर है. नाउ अभी हम लीफ के कुछ पार्ट्स है जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे. सबसे पहले है लीफ लैमिना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. ये लीफ लैमिना को लीफ ब्लेड बोला जाता है. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ नैरो स्टॉक, बाय अ नैरो स्टॉक. ये जो लीफ लैमिना है एक नैरो स्टॉक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. बराबर है, विच इज कॉल्ड एज पीट्यूल. इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पीट्यूल. बट स्टूडेंट, जनरली इन सम प्लांट्स petioles आर प्रेजेंट. In some plants petioles are present, and such leaf having the petiole, they are called as stalked leaves. They are called as stalked leaves. What is mean by stalked leaves? The plants having petiole. Petiole. What is petiole? Petiole is nothing but it is the stalk attached लैमिना टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट. लैमिना और स्टेम को अटैच करने वाला यहाँ पे जो बच्चों पार्ट है जिसे पीट्यूल बोला जाता है. दिस इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट एंड दिस इज द लैमिना ऑफ अ प्लांट. इट मीन्स पीट्यूल कनेक्ट्स द स्टेम एंड लीफ लैमिना. In short, it is a connecting link between the stem and leaf lamina or leaf blade. Then student, after petiole, then we have to go on the next point of the leaf, that is midrib. ये जो सेंटर से लाइन गए वाली है, this is the midrib. इसे क्या कहा जाता है? midrib. This midrib has several side veins. बराबर है, इसे side veins भी है. Now the stalked leaves, the example of stalked leaves are hibiscus. All of you know बच्चों hibiscus, रोजा साइनेंसिस, जिसे हम चाइना रोज, जासवंत कहते हैं. बराबर है. This hibiscus plant has the petiole, so the leaves of hibiscus are called as stalked leaves. The leaves of hibiscus are called as stalked leaves. दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा. Then the second example of stalked leaves is guava. All of you know the guava. Okay, guava is a edible fruit जिसे हम पेरू कहते हैं. बराबर है. So these are the two examples of stalked leaves. बराबर है, stalked leaves. What is mean by stalked leaves? The leaves having a petiole. The leaves having a petiole, it is called as stalked leaves, and stalked leaves are found in the plants like hibiscus, guava, etc. Then next point, in some plants, student, the petioles are absent. Such type of plants are called as sessile leaves. Such type of leaves are called as sessile leaves. ऐसे leaves को जो है sessile leaves. Without petiole. Sessile का मतलब क्या है? Without petiole. अभी देखिए, the plants without petiole is called as, or the leaves without petiole is called as sessile leaves. There are so many examples of sessile leaves. सबसे पहला है grasses. All of you know the grasses. Okay, grasses. Grasses monocot plants में आ जाते हैं. Then after grasses, then the next example is calotropes.
calotropes. These two examples are sufficient, I think. Sessile leaves, grasses and calotropes. All of you know the calotropes plant. Okay. So these are the two examples of the plant. Now students, number of branches arises on the lamina from midrib are known as side veins. जो है ये जो लैमिना से नंबर ऑफ ब्रांचेस अराइज होते हैं इसे साइड वेन्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? साइड वेन्स. बिफोर स्टार्टिंग द साइड वेन्स आई विल रिपीट वंस अगेन. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ. जनरली ये जो है डायकॉट प्लांट का लीफ ऐसा होता है और इसमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है. क्या होता है बच्चों? रेटिकुलेट वेनेशन होता है. व्हाट इज मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन, पहले वेनेशन देखेंगे. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ. जो भी लीफ में वेन्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है? दो प्रकार का अरेंजमेंट है. पहला है रेटिकुलेट वेनेशन जो कि आपको दिख रहा है. रेटिकुलेट वेनेशन विच इज फाउंड इन द जनरली डायकॉट प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज है जिसे हम जासवंत बोलते हैं. बराबर है. डायकॉट प्लांट्स, बहुत सारे डायकॉट प्लांट्स है जिसमें जो है तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. सबसे पहले वेनेशन. व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज वेनेशन. वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स और ये वेनेशन के जो है बच्चों दो टाइप्स है. बराबर है. There are two types of venation in the leaf of a plant. In the leaf of a plant, and the first is the reticulate venation. First is the reticulate venation. What is mean by reticulate venation? First of all, this type of venation is found in dicot plants. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे डायकॉट प्लांट्स का. कौन सा भी लीफ आप ले लीजिए हायर प्लांट्स का. बराबर है. आपको ये रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा. तो अगर आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखना ही है यू हैव टू टेक अ लीफ ऑफ अ चाइना रोज प्लांट. यू हैव टू टेक अ लीफ ऑफ अ चाइना रोज प्लांट एंड एक्सपोज इन द सनलाइट एंड ऑब्जर्व केयरफुली. बराबर है. आप सनलाइट में उसे एक्सपोज करके जो है केयरफुली उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए. आपको जो है सेंटर को लीफ के चाइना रोज के जो है तो मिड रिब दिखेंगी और साइड वेन्स भी दिखेंगे. तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है. वो हम स्टार्ट करेंगे. इन दिस टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क लाइक पैटर्न. वेन्स जो भी होते हैं प्लांट्स के वो नेटवर्क लाइक पैटर्न एक जालीदार पैटर्न तैयार करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब. दोनों भी साइड मिड रिब. अभी सपोज दिस इज द लीफ ऑफ अ प्लांट. द लीफ ऑफ अ प्लांट हैज टू पार्ट. दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट. ओके. एंड दिस टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन प्लांट्स हैविंग द टैप रूट सिस्टम. जो भी प्लांट में टैप रूट सिस्टम होती है वो सभी प्लांट्स में जो है. व्हाट इज मीन बाय टैप रूट सिस्टम? जनरली जिसे हम सोट मूल बोलते हैं. बराबर है. प्लांट में इन प्लांट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट. बराबर है. पहला है टैप रूट विच इज फाउंड इन द डायकॉट प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, लाइक हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. बराबर है. देन अनदर टाइप्स ऑफ रूट्स आर found in the plants also and they are called as fibrous roots. Fibrous roots आपको पता है जवार बेस्ट एग्जांपल है. जवार मेज. डू यू नो जवार मेज? ये सारे मोनोकॉट प्लांट में जो है तो फाइब्रस रूट सिस्टम पाई जाती है. तंतुमय मूल जिसे बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट सिस्टम होती है. बराबर है. टैप रूट सिस्टम होती है. Veins form a net like pattern. In this net type, veins form a net like pattern or network like pattern and this is called as reticulate venation. The example is hibiscus. Best example अगर आपको देखना ही है
एक्चुअली कैसा लीफ स्ट्रक्चर होता है, मिड वेन कहाँ होती है, साइड वेन्स कहाँ पे होते हैं, देन लीफ लैमिना, देन लीफ मार्जिन अगर देखना, यू हैव टू ऑब्जर्व द फ्लावर ऑफ चाइना रोज और हिबिस्कस. ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन, that is parallel venation. That is parallel venation. अभी ये पैरेलल वेनेशन थोड़ा अलग है. दिस पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन द जवार प्लांट, जवार, देन मेज, ऑल मोनोकोटिल्यूडॉन प्लांट्स. इन शॉर्ट मोनोकॉट प्लांट्स में जो है अगर हमने लीफ ऑब्जर्व किया है, मोनोकॉट्स प्लांट्स, द प्लांट्स हैविंग सिंगल कोटिल्यूडॉन इन देयर सीड, जो प्लांट के सीड में सिंगल एक ही कोटिल्यूडॉन है, ऐसे प्लांट को हम मोनोकॉट प्लांट कहते हैं, एक दल वनस्पति. जैसे जवार एग्जाम्पल है, मेज है. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल वेनेशन. इफ वी हैव टू टेक अ लीफ ऑफ अ जवार प्लांट, जवार प्लांट का अगर हमने लीफ लिया है और उसे एक्सपोजर सनलाइट में किया है तो पैरेलल वेनेशन दिखेगा, लेकिन इतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना जो है रेटिकुलेट वेनेशन में दिखता है. जैसे जासवंत का जो पत्ता है, अगर आपने देखा है तो अच्छी तरह से दिखता है. सो दिस इज द पैरेलल वेनेशन. व्हाट इज गिवन इन द पैरेलल वेनेशन? वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर. वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर. ये वेन्स कैसे रन होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन जैसा इनका वेनेशन नहीं होता है. ठीक है. देन दिस पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन प्लांट्स हैविंग द फाइब्रस रूट्स. ये फाइब्रस रूट्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, फाइब्रस रूट्स, यहां पे हमने टैप रूट बोला है, यहां पे हम लिखते हैं फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स, तंतुमय मूड़े जिसे बोला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ वेनेशन इन प्लांट. ओके, व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीफ ऑफ अ प्लांट is called as venation. There are two types of venation are found in the plant. The first venation is, student, reticulate venation. In this type of venation, veins form a net-like pattern. This is called as reticulate venation, and reticulate venation is present in the plants having tap root system. जो plants में tap root है, generally जो डाइकॉट्स प्लांट्स है जैसे हिबिस्कस, ग्राउंडनट, तो इसमें जो है रेटिकुलर वेनेशन पाया जाता है. दूसरा पैरेलल वेनेशन है बच्चों, बराबर है. व्हाट इज गिवन इन द पैरेलल वेनेशन? वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, ओके, along the length of the leaf, along the length of the a leaf. Parallel venation. Veins run parallel to each other. Underline this word. Along the length of leaf. It is called as parallel venation. This parallel venation is found in the jawar, maize. Okay. ये प्लांट्स में पाया जाता है. ग्रासेस भी है. बनाना आपको पता है बच्चों, बनाना ग्रासेस जिसे जो है घास बोला जाता है. बनाना, आप सभी को केला पसंद है. बनाना प्लांट का अगर आपने लीफ लिया है तो उसमें पैरेलल वेनेशन पाए जाएंगे. ओके. नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड टाइप ऑफ वेनेशन इन द लीफ ऑफ अ प्लांट, स्टूडेंट, वी हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ लीफ. दैट इज द फंक्शंस ऑफ लीफ. What are the various functions of leaf? Leaf के functions क्या है actually? The main function of leaf is photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Photosynthesis. First of all, I am राइटिंग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वर्ड इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, नॉट द केमिकल इक्वेशन. पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिखना है. फॉर फोटोसिंथेसिस
process in plant, there are two raw materials are required, and these raw materials are carbon dioxide plus water. All of you know the water. In presence of sunlight and chlorophyll. What is chlorophyll? This chlorophyll is nothing but a dark green pigment which is found in the leaf of the plant. Okay? एक हरा ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लीफ हरे होते हैं. क्यों हरे होते हैं? बिकॉज द कलर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इज डार्क ग्रीन, इसीलिए जो है तो ये क्लोरोफिल. द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट is present in the most of the plant is chlorophyll A. Okay, chlorophyll A main photosynthetic pigment है. ये हम word equation में लिख रहे हैं. These are the carbon dioxide which comes from atmosphere or air by plants through the stomatal pores. Plant का जो भी बच्चों leaf होता है, suppose this is the leaf of a plant and this is the midrib, बराबर है. दिस इज द लीफ ऑफ अ प्लांट. नाउ अभी ये जो लीफ लैमिना है और लीफ एज है, यहाँ पे जो है देर आर स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट. देर आर स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लीफ. छोटे छोटे पोर्स होते हैं फ्रॉम विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है प्लांट के लीफ में एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. देन वाटर. अभी वाटर कहां से आता है जिसे हम H2O बोलते हैं? वाटर केम्स फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट सप्लाई एब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सप्लाइज टू द स्टेम. And from stem then it reaches to the leaf of a plant. बराबर है? Leaf of a plant. This is the word equation for photosynthesis. ये word equation है, इसे हम chemical form में भी लिख सकते हैं. Okay, but there is no need. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है? From air और atmosphere, water, soil से आया है. बराबर है? In presence of which form the कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट प्लांट फूड तैयार होता है. बराबर है? प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टूडेंट ऑटोट्रॉप्स. दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद के, एंड ट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉप्स जिसे हम स्वयं पोषी कहते हैं मराठी में. ह्यूमन बीइंग इज अ ऑटोट्रॉप? नो, ह्यूमन बीइंग मानव ऑटोट्रॉप नहीं है. ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. इट मीन्स दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर फूड पर्पस. बराबर है? नाउ in the photosynthesis plant, in short ये photosynthesis. Then the next function of the leaf is transpiration. 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 What is mean by transpiration? देखिए, root of plant, the main function of root of a plant, root of plant absorb maximum amount of water from the soil. They go deeper in the soil in search of वाटर. पानी ढूंढने के लिए ये रूट जो है बहुत ही डीपली सॉइल में जाते हैं एंड दे एब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. एंड इन रूट देयर आर कंडक्टिंग टिश्यू. बराबर है? कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं और इसकी मदद से जो है रूट से वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद जो है स्टेम तक पहुंचाते हैं. स्टेम के बाद वो ब्रांच तक और ब्रांच से लीफ तक पहुंचाता है. फॉर विच पर्पज? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. बराबर है? बट वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ अ प्लांट, ओनली little amount of water is utilized by the plant
for making their food, and the remaining water in the plant में जो बचे वाला जो पानी है, it get evaporates into the atmosphere. कैसा evaporates होता है? यहाँ पे जैसा CO2 एंट्री करता है ना एयर से, तो यहाँ से जो है प्लांट में का जो भी एक्सेस वाटर है, अतिरिक्त पानी है, वो जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर चला जाता है, एयर वाटर वेपर्स फॉर्म में एयर में चला जाता है। और यही प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसपिरेशन। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। ओके, for transpiration, this transpiration takes place in the stomata of a leaf. बराबर है? स्टोमेटा ऑफ अ लीफ। तो यह लीफ के स्टोमेटा में होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। Then the third is, in some plants leaf get modified into thread like structures. बराबर है? Which help in climbing up to a support. कुछ प्लांट में लीफ का कन्वर्जन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी रचना होती है, और इसे जो है बच्चों, तो ऐसा एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट अभी हम स्टार्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। वेरी सिंपल, जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखा है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखा है, वैसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखा है। व्हाट इज मीन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? इन सम प्लांट्स रूट गेट्स मॉडिफाइड, इन सम प्लांट्स रूट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा फंक्शंस और स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कहा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। एक्चुअली लीफ में क्या मॉडिफाइड हुआ है? जैसे कि टेंड्रिल है लीफ में, वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं बच्चों। इन पहले देखेंगे लीव्स